Welcome children. In this video you will be learning another way of searching element in a linear list or array, that is binary search technique. So binary search is another very popular search technique which can be used to search for an element in a linear list or array. This technique is considered to be one of the fastest searching techniques as compared to other searching techniques that are available. Especially if we compare it with the linear search technique, it is one of the best searching techniques in case of large sized arrays or linear lists. Okay, and how does it work? How does it work fast? Is due to the principle upon which it works, that is the principle of divide and conquer. So it uses this principle with the help of which it is able to search for an element in a fast way uh, as compared to linear search technique. Okay, and how it does it? By reducing the number of comparison and therefore saving time. Okay, so in case of linear search, you know that the element was compared against every element of the array till the element to be searched was found. But here the things are a little bit different. So let us see how the binary search technique works. But before that, there are certain prerequisites of binary search technique. Means it cannot straight away work on an array to search for an element. It requires the array to be pre-sorted in some order, either ascending or descending. So the array has to be sorted in some order. Okay, then only it is going to work properly. If the given array is unsorted, then you will have to first sort it with the help of some sorting technique like insertion sort, bubble sort, selection sort, whatever it is. So you will first sort the array and then you will apply this binary search technique over it, so in order to search for an element. And if you don't do so, if you straight away apply binary search technique over an array which is unsorted, then you are going to get undesired outputs. Okay, so now let us see how this technique works. Okay, so as per divide and conquer rule, the given item is searched for in a smaller segment, nearly half the previous segment after every stage. देखिए क्या होता है इसमें, क्या होता है कि एक टाइम पे एलिमेंट को एक सेगमेंट में ढूंढा जाता है और हर नेक्स्ट सेगमेंट पिछले सेगमेंट का ऑलमोस्ट हाफ होता है. तो यानी पहले फॉर द फर्स्ट स्टेज द सेगमेंट इज गोइंग टू कंटेन द एंटायर एरे. ठीक है, पहला सेगमेंट पूरा एरे होता है. लेकिन जब आप सेकेंड सेगमेंट में आएंगे तो वो सेगमेंट फर्स्ट सेगमेंट का हाफ होगा, यानी द एरे द सेगमेंट विल बी रिड्यूस टू हाफ ऑफ द साइज ऑफ द एरे. फिर उसके बाद जब आप और कम और फर्दर मूव करेंगे तो थर्ड सेगमेंट सेकेंड सेगमेंट का भी हाफ होगा. तो इस तरीके से यहाँ पे वर्क होता है. ठीक है, एंड एलिमेंट टू बी सर्च इज कंपेयर्ड विद द मिडल एलिमेंट ऑफ द सेगमेंट. तो जो भी आपका सेगमेंट है उसका जो मिडल एलिमेंट है, पहले हमें उसका मिडल एलिमेंट ढूंढना होता है. मिडल एलिमेंट कैसे ढूंढते हैं? फर्स्ट इंडेक्स लास्ट इंडेक्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, वो हमारी मिडिल इंडेक्स आती है और फिर मिडिल इंडेक्स के एलिमेंट से हम उस एलिमेंट को कंपेयर करते हैं. ठीक है, तो लेट अस मूव फर्दर एंड सी व्हाट हैपेंस. मिडिल एलिमेंट से हमने उसको कंपेयर किया और अगर ये मैच कर गया मिडिल एलिमेंट से तो हम क्या करते हैं, कहते हैं एलिमेंट फाउंड सक्सेसफुली. ठीक है, एंड उसकी इंडेक्स डिस्प्ले कर देते हैं. बट इफ इट डज नॉट मैच, अगर ये मैच नहीं करता है, इन दैट केस द एलिमेंट विल ईदर बी ग्रेटर और लेस देन द मिडिल एलिमेंट. देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए कि हमने एरे को असेंडिंग ऑर्डर में अज्यूम किया हुआ है. ठीक है, तो आपने जब उसको मिडिल एलिमेंट से कंपेयर किया और वो इक्वल नहीं निकला, तो दो ही सिचुएशन हो सकती हैं. या तो वो एलिमेंट मिडिल एलिमेंट से छोटा होगा, और अगर छोटा होगा तो फिर वो एरे के फर्स्ट पार्ट में मिलेगा, सेकेंड पार्ट में नहीं.
है कि नहीं। आपका एरे असेंडिंग ऑर्डर में है। सपोज यू आर सर्चिंग फॉर 52, मिडिल एलिमेंट आपका 60 है, तो आप ऑब्वियसली आपका जो 52 है वो लेस है मिडिल एलिमेंट से, तो वो आपको बिगनिंग मीन्स मिडिल पार्ट के पहले वाले यानी लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्शन में मिलेगा। और अगर ये एलिमेंट बड़ा है, सपोज आप 90 के लिए सर्च करें तो 60 से 90 बड़ा है, तो इट विल बी फाउंड इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द एरे। ये भी एक एग्जाम्पल से भी एक्सप्लेन करूँगी। तो क्या होता है कि अगर ये मैच नहीं करता है तो दो सिचुएशन आती हैं। या तो एलिमेंट स्मॉल होगा मिडिल एलिमेंट से या बिग होगा। अगर स्मॉल है तो फॉर्मर पार्ट ऑफ द प्रीवियस सेगमेंट बिकम्स द नेक्स्ट सेगमेंट टू बी स्कैन्ड। तो जो पहला हिस्सा होता है उस सेगमेंट का, मिडिल एलिमेंट से जो पहला पोर्शन है उसको नेक्स्ट सेगमेंट मानते हैं। और अगर वो एलिमेंट्स मिडिल एलिमेंट से बड़ा है तो फिर वो सेकेंड हाफ में मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट हाफ में मिलेगा तब जब हमारा एलिमेंट छोटा है मिडिल एलिमेंट से, और सेकेंड हाफ में तब मिलेगा जब हमारा एलिमेंट मिडिल एलिमेंट से बड़ा है। एंड ऑपोजिट विल हैपन इन केस ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर इस प्रोसेस को हम तब तक रिपीट करते हैं जब तक या तो हमें एलिमेंट मिल जाए, हमारी सर्च सक्सेसफुल हो जाए, और द सेगमेंट गेट्स रिड्यूस्ड टू अ सिंगल एलिमेंट एंड स्टिल द एलिमेंट इज नॉट फाउंड। दो ही सिचुएशन होती हैं, या तो आप ये काम करते रह जाते हैं और अल्टीमेटली आपका एलिमेंट, आपका सेगमेंट एक एलिमेंट का बचता है और तब भी आपको वो एलिमेंट नहीं मिलता, तो इसका मतलब आपका एलिमेंट उस सर्च में, उस एरे में प्रेजेंट ही नहीं है। तो उस केस में हम कहते हैं सर्च हम रुक जाते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरा केस क्या हो सकता है कि हम इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करेंगे जब तक हमें एलिमेंट मिल ना जाए। ठीक है, तो अब इसको एक एग्जाम्पल से समझो। देखो, सबसे पहले मैंने बताया था कि फर्स्ट स्टेज में जो हमारा सेगमेंट होता है वो फुल एरे होता है। तो सपोज वी आर सर्चिंग फॉर 36। ठीक है, तो इस केस में मेरा ये पूरा एरे फर्स्ट सेगमेंट होगा। ठीक, तो इसकी मिडिल इंडेक्स में कैसे निकालूंगी? हम यहाँ पे दो वेरिएबल लेते हैं, स्टार्ट एंड एंड, और इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते तो हमें मिडिल इंडेक्स मिलती है। तो इसके हेल्प से देखिए, मैंने 0 + 8 किया तो आएगा 4। 4 डिवीजन 2 विल गिव 4, तो इससे हमें निकला मिडिल इंडेक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0 पे हमारा बिगनिंग था और 8 पे हमारा लास्ट था। हम यहाँ पे 3 वेरिएबल के हेल्प से वर्क करते हैं, बिगनिंग, एंड मिडिल। बिगनिंग एंड की हेल्प से हम मिडिल कैलकुलेट करते हैं। तो 0 + 8 विल बी डिवाइडेड बाई 4 एंड फ्लोट डिवीजन बाई 4, क्योंकि इंडेक्सेस कभी भी फ्लोट वैल्यू नहीं होती है। तो हमने अगर डिवाइड कर दिया तो आप जानते हो कि पाइथन में डिवाइड का रिजल्ट हमेशा एक डेसिमल पॉइंट की वैल्यू आती है, मतलब फ्लोटिंग वैल्यू आती है। तो वो तो हमें चाहिए नहीं, इसलिए हमने फ्लोट डिवीजन किया है। तो आएगा 4, तो हम कहाँ पे आ गए? यहाँ आ गए। अब इस एलिमेंट को 36 को हम इससे कंपेयर करेंगे। देखिए मेरा एरे ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, अब मैंने 36 को 57 से कंपेयर किया, तो मेरा जो 36 है वो 57 के इक्वल नहीं है। तो अब इक्वल नहीं है तो या तो लेस होगा या बड़ा होगा। ठीक है, हमारा 36 57 से लेस है, तो हम मेरा नेक्स्ट सेगमेंट क्या बनेगा? यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इससे तो हम कंपेयर कर ही चुके हैं। ठीक है, अब ओनली दिस मच इज माय नेक्स्ट सेगमेंट टू बी स्कैन्ड। अब इसको सेगमेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारी वेरिएबल है इसको मिड -1 पे लाते हैं। तो अगर मेरा एलिमेंट टू बी सर्च्ड स्मॉलर है एज कंपेयर टू मिडिल एलिमेंट, देन आई एम गोइंग टू ब्रिंग दिस वेरिएबल मीन्स एंड वेरिएबल टू मिडिल -1। ठीक, अब उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, मिडिल इंडेक्स निकालेंगे। तो नेक्स्ट हमारी मिडिल इंडेक्स बनेगी 0 + 3 डिवाइड बाई 2, क्योंकि हमारा मिडिल ये यहाँ था, बिगनिंग यहाँ थी और एंड ये बन गया था, क्योंकि ये मिडिल था ना पहले, तो मिड -1 पे हम एंड को ले आए थे। तो 0 + 3 फ्लोर डिवीजन 2, तो इससे क्या बनेगा?
1, 1 इज़ द मिडिल इंडेक्स, ठीक है। तो हम यहाँ आ गए, ये हमारा मिडिल इंडेक्स है। इस बार इस सेगमेंट का मिडिल इंडेक्स 1 निकला। अब हमने 1 से कंपेयर, मतलब 23 से कंपेयर किया 36 को, तो ये इक्वल नहीं है, बड़ा है। तो बड़ा है तो फिर क्या होगा, आपका नेक्स्ट सेगमेंट क्या बनेगा, ये, दिस इज़ योर नेक्स्ट सेगमेंट, ठीक है। कैसे ये नेक्स्ट सेगमेंट बनाओगे, अब एंड तो यही रहना है, एंड तो यही है, लेकिन बिगनिंग को मिड प्लस 1 में लाओगे। ये मिड था, दिस वॉज द मिड। अब आप इसको, ये वाला जो स्टार्ट है, इसको यहाँ ले आओगे तो नेक्स्ट सेगमेंट आपका ये बन जाएगा, ठीक है। अब ये नेक्स्ट सेगमेंट बना। अब देखिए, दिस इज माई नेक्स्ट सेगमेंट, सो आई एम गोइंग टू ऐड 2 + 3 डिवाइड बाई 2। तो देखिए इसका, ओके, यहाँ पे गलत लिख दिया है, 2 + 3 होना चाहिए, क्योंकि हमारा मिडिल इंडेक्स 1 निकला था। तो 1 के बाद हम स्टार्ट को कहाँ ले आए थे, 2 पे लाए थे ना। तो 2 + 3 डिवाइड बाई 2, तो इसको आप छोड़ दीजिए। 2 + 3 डिवाइड फ्लोर डिवीजन 2 विल बी 5 फ्लोर डिवीजन 2 एंड 5 फ्लोर डिवीजन 2 इज़ 2, ठीक है। तो मेरा स्टार्ट भी यही है, एंड ये है, और मिडिल भी ये है, ठीक है। तो अब मैंने इस 36 को मिडिल एलिमेंट से कंपेयर किया, तो देखिए मेरी सर्च सक्सेसफुल हो गई, ठीक है, क्लियर। तो हमने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले पूरे एरे को सेगमेंट बनाया था, उसका मिडिल इंडेक्स निकाला, मिडिल इंडेक्स से कंपेयर किया 36 को, 36 छोटा निकला, तो मेरा नेक्स्ट सेगमेंट था ये। इसमें मैंने क्या किया, 0 + 3 किया डिवाइड बाई 2 किया, तो मेरा मिडिल इंडेक्स निकला 1, क्योंकि 0 + 3 हुआ 3, डिवाइड बाई 2 करोगे 1.5, 1.5 का सिर्फ 1 ले लेंगे, तो 1 हमारा मिडिल एलिमेंट निकला। लेकिन इससे मेरा 36 बड़ा था, तो 36 बड़ा था, तो फिर मैंने क्या किया, नेक्स्ट सेगमेंट इसको बनाया, ठीक। फिर इस नेक्स्ट सेगमेंट में मैंने फिर मिडिल इंडेक्स निकाली, तो मेरी मिडिल इंडेक्स निकली ये, और इस मिडिल इंडेक्स में मुझे अपना एलिमेंट मिल गया, तो मैं रुक गई। सो दिस इज़ द फर्स्ट सिचुएशन वेयर यू हैव टू स्टॉप द प्रोसेस, ठीक है, कि आपको अल्टीमेटली एलिमेंट मिल गया, अब आप रुक सकते हैं, ठीक है। नाउ सी अनदर केस, सपोज दिस टाइम आई एम सर्चिंग फॉर 62। 62 करेंगे तो फिर से सबसे पहले मेरा फुल सेगमेंट, फुल एरे मेरा सेगमेंट बनेगा। तो 62 को कंपेयर करेंगे अगेन, मेरा 0 + 8, 0 + 8 क्या आएगा, फ्लोर डिवीजन 2 आएगा, फ्लोर डिवीजन 2 यानी 4 आएगा। तो फिर से मेरा मिडिल एलिमेंट क्या है, मिडिल एलिमेंट 4 है। ये स्टार्ट था, ये एंड था, और ये आया मिडिल, ठीक। मिडिल से कंपेयर किया 62 को, इक्वल नहीं है, ग्रेटर है, तो नेक्स्ट सेगमेंट मेरा क्या बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी माई सेगमेंट। और इसको सेगमेंट बनाने के लिए मुझे स्टार्ट को यहाँ से हटा के मिड + 1 पे लाना पड़ेगा। सो दिस इज माई न्यू स्टार्ट, ठीक है। अब फिर से मिडिल कैलकुलेट करेंगे, ये वाला मिडिल हटाइए, तो 5 + 8 डिवाइड बाई 2, तो 5 + 8 इज 13, ओके। 13 डिवाइड बाई 2 विल बी 6.5, बट यू विल टेक 6 ओनली। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने मिडिल इंडेक्स निकाली, ये मेरी स्टार्ट था, ये मेरा एंड था, और ये मेरा मिडिल निकला, ठीक है। अब मिडिल निकलने के बाद 62 को मैंने 77 से कंपेयर किया, मेरा एलिमेंट इससे छोटा निकला। तो जब छोटा निकलता है तो हम एंड को मिडिल -1 पे लाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर के केस में, ठीक है, क्योंकि जब मेरा एलिमेंट छोटा है तो वो मुझे मिडिल से पहले मिलेगा ना, मिडिल के बाद तो मिलेगा नहीं। तो फिर मैंने एंड को क्या किया, m-1 पे लाया, मिडिल -1 कहाँ हुई, ये इंडेक्स हुई। तो अब 60, अब ये मिडिल है, ठीक है, एंड भी यही है। देखिए जब आपका ये एलिमेंट 77 से छोटा निकला तो आप एंड को यहाँ ले आए थे ना, ये मेरा एंड हो गया ना, ये, ठीक है।
अब मैं अगर मिडिल इंडेक्स निकालूंगी तो क्या होगा, 5 + 5 सी, 5 + 5 फ्लोर डिवीजन 2, ठीक है ना। तो उससे फिर से 5 निकला, यानी कि इस सिचुएशन में मालूम क्या हुआ, स्टार्ट भी यही है, एंड भी यही है और मिडिल भी यही है। देखिए मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट सिंगल एलिमेंट में रिड्यूस, सेगमेंट जो है हमारा सिंगल एलिमेंट का हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिंगल एलिमेंट का सेगमेंट हो गया और मिडिल भी यही निकली और यहाँ पे मेरी सर्च सक्सेसफुल हो गई। सो आई गॉट द वैल्यू, मीन सर्च इज सक्सेसफुल, ठीक है। अब इसी केस में एक और समझ लीजिए, सपोज आई एम सर्चिंग फॉर 90, ठीक है, 90 मैंने सर्च करना था। तो देखिए अभी 62 के लिए हम यहाँ तक पहुँचे थे ना, ठीक है, 90 के लिए सर्च करना है, सपोज शुरुआत से कर लेते हैं। तो क्या होगा, ये पूरा सेगमेंट होगा, इसमें हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, 57 से 90 बड़ा होगा तो ये मेरा नेक्स्ट सेगमेंट बनेगा। इस नेक्स्ट सेगमेंट में मेरा ये मिडिल इंडेक्स निकलेगा, 77 से 90 फिर बड़ा है, ठीक है, तो फिर मेरा ये नेक्स्ट सेगमेंट बनेगा। इस नेक्स्ट सेगमेंट में 7 + 8 15, 15 फ्लोर डिवीजन 2 विल बी 7.5, दैट इज 7, तो ये मेरा मिडिल एलिमेंट बनेगा। इसमें है 83, 83 से भी 90 बड़ा है, ठीक है, 83 से 90 बड़ा है, तो मेरा नेक्स्ट सेगमेंट क्या हो जाएगा, ये ओनली दिस, ठीक है। अब 8 + 8 फ्लोर डिवीजन 2 विल बी 16 फ्लोर डिवीजन 2, दैट इज 8, और 8 ही आपका मिडिल भी बन गया इस बार, लेकिन इस बार भी आपको ये एलिमेंट मैच नहीं किया, यानी सिंगल एलिमेंट का सेगमेंट होने के बाद भी एलिमेंट आपको नहीं मिला, यानी कि आपकी सर्च अनसक्सेसफुल हो गई। हम इस काम को कब तक करते हैं ये आप देख लो, जब तक हमारा बिगनिंग लेस देन इक्वल टू एंड रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप इधर से सर्च करते हुए आ रहे हैं, इधर से सर्च करते हुए आ रहे हैं, तो जब आपने यहाँ से लेके यहाँ तक सर्च कर ही लिया तो इसको क्रॉस करने का, इधर की साइड क्रॉस करने का और इधर की साइड क्रॉस करने का कोई मतलब ही नहीं है ना। मतलब कि जब आप इधर से ढूंढते हुए आए आपको नहीं मिला, इधर से ढूंढते हुए आए आपको नहीं मिला, तो इनको क्रॉस करवाने से क्या फ़ायदा, नहीं मिलना है अल्टीमेटली स्टेटमेंट, इसलिए इस काम को हम बिगनिंग लेस देन इक्वल टू एंड तक करते हैं। नाउ लेट अस सी द प्रोग्राम। मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, लिस्ट ले ली, यूज़र से इवैल में से इनपुट करा ली, फिर एलिमेंट टू बी सर्च इनपुट कराया, एंड आफ्टर दैट आई हैव सेंट दीज 2 एलिमेंट्स टू द फंक्शन, ठीक है। तो ए में लिस्ट है और एक्स में क्या है, एलिमेंट टू बी सर्च। अब देखिए मैंने बिगनिंग को कहाँ रखा, 0 पे, और एंड को रखा है लेन a-1, ए इज़ द लिस्ट, तो बिगनिंग मेरा यहाँ आ गया, ठीक है, और एंड मेरा यहाँ आ गया, ठीक। फिर उसके बाद फाउंड 0 क्यों लिया है, क्योंकि इसके हेल्प से जैसे ही हमें एलिमेंट मिलेगा हम f को 1 बना लेंगे, मतलब फाउंड को 1 बना लेंगे, और अगर इस पूरे काम के बाद भी फाउंड 0 ही रह गया तो यानी आपको एलिमेंट नहीं मिला, ठीक है। अब मैंने देखिए लूप के अंदर क्या किया, मैं लूप को कहाँ तक चला रही हूँ, टिल बिगनिंग इज लेस देन इक्वल टू एंड, ठीक है। तो जब तक आप बिगनिंग को देखिए इधर से इधर लेते जाते हैं, ठीक है, और एंड को इधर से इधर लेते आते हैं, तो अल्टीमेटली आपका ये काम बस आपको तभी तक करना है जब तक बिगनिंग लेस देन या इक्वल टू एंड हो, उसके बाद आपको ये काम नहीं करना है। तो अब देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे मेरा एंड था, बिगनिंग था, यहाँ मेरा एंड था, मैंने मिडिल निकाला, ठीक, मिडिल निकाला और मिडिल से एक्स को कंपेयर किया, अगर मिल गया तो फाउंड एट इंडेक्स मिड इंडेक्स पे है मेरा, ठीक है, और देखिए मिड मैंने पहले ही निकाल लिया है। फिर फाउंड को 1 बनाया, ब्रेक करा दिया, ब्रेक आपको कहाँ ले जाएगा, सीधे बाहर, मतलब यहाँ, कुछ करने को नहीं है, जैसे ही मिलेगा फाउंड एट इंडेक्स मिड, प्रिंट होके काम खत्म। लेकिन अगर आपको ये नहीं मिला तो फिर मतलब इक्वल मैच नहीं हुआ तो फिर ये लेस होगा। अगर असेंडिंग ऑर्डर में आपका एरे है और एलिमेंट टू बी सर्च छोटा है मिडिल एलिमेंट से, तो आपको इतने में ही मिलेगा ना। तो हमने क्या किया, एंड मेरा यहाँ था, एंड को यहाँ ले आए मिड -1 पे, बिगनिंग को यहीं रहने दिया, ठीक है। फिर
एल्स अगर मान लीजिए बड़ा है 57 से तो आपको यहाँ मिलेगा तो एंड को तो यहीं रहने देंगे, लेकिन बिगनिंग को मिड +1 पे ले आएंगे। 57 पे मेरा मिड था ना, तो मिड +1 पे ले आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए देखिए यहाँ पे ये किया है। अब ये काम चलता रहेगा टिल बिगनिंग इज लेस देन इक्वल टू ई, और या तो सर्च सक्सेसफुल हो जाए। अब जब आपका पूरा ये काम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी आपकी ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं हुई, तो फिर क्या होगा, अल्टीमेटली ये कंडीशन फॉल्स होगी। और जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो आप यहाँ आएंगे और आपको फाउंड मिलेगा 0, तब आप कह देंगे नो सच एलिमेंट फाउंड। ठीक है, अब देखिए सैम्पल आउटपुट्स मैंने ये लिस्ट दी, ठीक है, और मैंने कहा 92 सर्च करना है, 92 उसको मिल गया एट इंडेक्स 5 इंडेक्स पे है, देखिए 0 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 इंडेक्स में मिला ना ये। एक और सैम्पल आउटपुट देखिए इसका, मैंने फिर से लिस्ट दी और मैंने कहा 50 सर्च कर दो, तो देखिए कह रहा है नो सच एलिमेंट फाउंड। क्लियर। तो यहाँ पे बेसिकली करना यही होता है कि पहले आप सबसे पहले एलिमेंट को बिगनिंग, सबसे लास्ट एलिमेंट को एंड मान के मिडिल एलिमेंट निकालिए। मिडिल एलिमेंट निकालने के बाद उसको मिडिल से कंपेयर करिए, अगर छोटा निकले, असेंडिंग ऑर्डर के केस में अगर छोटा निकले तो फर्स्ट हाफ आपका नेक्स्ट सेगमेंट बनता है, अदरवाइज सेकेंड हाफ आपका नेक्स्ट सेगमेंट बनता है, और उस सेगमेंट पे आपको यही काम रिपीट करना होता है। Here is a question now. See, write a function named bin search that receives list of integer and element to be searched as parameter and returns the index if the element is found, otherwise returns -1. Assume the array to be in descending order. ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ प्रोग्राम में देख लो, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो तो आपको सिर्फ एक चेंज करना होता है, ये जो लेस देन का साइन है ना, यहाँ ग्रेटर लगा देना होता है, और लॉजिक में कुछ भी नहीं बदलता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ग्रेटर लगा देने से क्या हुआ, डिसेंडिंग ऑर्डर में एरे होगा, है ना, एरे डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, तो अगर आपका एलिमेंट मिडिल एलिमेंट से बड़ा है तो वो आपको इधर मिलेगा, अगर छोटा है तो इधर मिलेगा। तो आप अगर ये चेंज कर देंगे तो आपका लॉजिक सही बैठ जाएगा। तो देखिए इसको मैंने कैसे सॉल्व किया, मैंने बिल्कुल वही प्रोग्राम लिखा है, लेकिन यहाँ पे इनपुट लेने लिया लिस्ट का, फिर एलिमेंट टू बी सर्च का इनपुट लिया, फिर मैंने बाइनरी सर्च फंक्शन को कॉल किया, और यहाँ पे देखिए ये मुझे इंडेक्स रिटर्न करेगा ना, या फिर -1 रिटर्न करेगा, वो मैंने टी में रिसीव कर लिया। टी की वैल्यू अगर -1 आएगी तो नो सच एलिमेंट फाउंड, और अगर कोई और वैल्यू आएगी तो यानी एलिमेंट इज फाउंड एट द पोजीशन t+1। t+1 पोजीशन है, अगर इंडेक्स 4 होगी तो उसकी पोजीशन 5th एलिमेंट होगी, मतलब वो 5th एलिमेंट होगा एरे का, क्योंकि इंडेक्सेस तो 0 से स्टार्ट होती है ना, इसलिए। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, बिगनिंग को 0, एंड को लेन -1 पे रखा, फिर फाउंड को 0 रखा, बिगनिंग लेस देन इक्वल टू ई तक हमारा लूप चलेगा, हर बार मिड निकालेंगे, मिड से कंपेयर करेंगे, फिर मिड से अगर कंपेयर सक्सेसफुल हो जाता है तो हम मिडिल इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे, क्योंकि यही मेरी वो इंडेक्स है जहाँ पे मुझे एलिमेंट मिला, और जैसे ही रिटर्न मिड एग्जीक्यूट होगा आप सीधे इस लाइन पे वापस आ जाएंगे, क्योंकि रिटर्न आपको वहाँ ले जाता है जहाँ से आप बुलाए गए हैं। ठीक है, तो अब अगर इक्वल निकल गया तो बात अलग है, नहीं अगर इक्वल निकला तो क्या होगा, आपका अगर ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट टू बी सर्च अगर बिग है एज कंपेयर टू मिडिल एलिमेंट, देन यू आर गोइंग टू फाइंड इट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेगमेंट। इसीलिए एंड को देखिए मिड -1 पे लाएं, स्टार्ट को यहीं के यहीं रहने दिया, एंड यहाँ था ना उसको मिड -1 पे ले आए, तो अब ये सेगमेंट बना। ठीक, और अगर ये एलिमेंट छोटा होगा तो फिर हमें क्या करना होगा, हमारा ये सेगमेंट बनेगा, और इस सेगमेंट के लिए मुझे स्टार्ट को यहाँ लाना पड़ेगा मिड +1 पे, है ना, तो इस तरीके से तब ये मेरा सेगमेंट बनेगा। अब अगर इस पूरे प्रोसेस के बाद भी हमारा एलिमेंट नहीं मिलता है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी अल्टीमेटली, है ना, और ये आपको ले आएगी लूप एल्स पे। लूप एल्स पे हमने -1 रिटर्न कर दिया, यहाँ पे मुझे फाउंड की ज़रूरत नहीं थी, है ना, क्योंकि जैसे ही हमें ये कंडीशन फॉल्स होगी हम लूप एल्स में आएंगे, और लूप एल्स में आके हम
अगर हम लूपर से पहुँचे हैं तो इसका मतलब हमें एलिमेंट मिला ही नहीं, क्योंकि रिटर्न तो अगर रिटर्न हो गए तो आगे का काम तो होना ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम होगा। सीधा सैम्पल आउटपुट्स, ये लिस्ट दी, एलिमेंट टू बी सर्च ये है, फाउंड एट पोजीशन 6। देखिए पोजीशन इसकी क्या है, 1 2 3 4 5 6, इंडेक्स है 5 लेकिन पोजीशन है 6। इसी तरह देखिए 100 को सर्च कर रहे हैं इस लिस्ट में, है नहीं, तो देखिए नो सच एलिमेंट फाउंड कह रहा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर बाइनरी सर्च टेक्निक in which you have to simply work with the principle of divide and conquer. I hope all of you must have understood the concept of binary search. Thank you so much.